Good morning students. Now see your page number 64. Exercise 4O. What is given in this exercise? Fill in the boxes. We have to fill the empty boxes. Now see first question. 10 multiplied by 6. Very simple. 10 6 the 60. Write down 60 in this box. Now see second question. 80 multiplied by 4. Now 80 multiplied by 4. 4 multiplied by 0, 0. 4 8s are 32. What is our answer? 320. Now see third question. 20 multiplied by 5. 20 multiplied by 5. 5 multiplied by 0, 0. 5 2s are 10. What is the answer? 100. Write down in the box 100. Now see fourth question. 50 multiplied by 9. 50 multiplied by 9. 9 multiplied by 0, 0. 9 5s are 45. So what is our answer? 450. Now see fifth question. 50 multiplied by 3. 3 multiplied by 0, 0. 3 multiplied by 5. 3 5s are 50. So what is our answer? 150. Write down in the box. Now see sixth question. 30 multiplied by 8. 30 multiplied by 8. 8 multiplied by 0, 0. 8 3s are 24. So what is our answer? 240. Now see seventh example. 70 multiplied by 6. 6 multiplied by 0, 0. 6 7s are 42. So what is the answer? 420. Write down in the box. Now see 8th question. 10 multiplied by 2. 10 2s are 20. We can write directly. Now see 9th question. 80 multiplied by 3. 80 multiplied by 3. 3 multiplied by 0, 0. 3 8s are 24. So what is the answer? 240. So write down all the answers in the boxes. Now see 10th example. 30 multiplied by 7. See 30 multiplied by 7. 7 multiplied by 0, 0. 3 7s are 21. So what is the answer? 210. Now see 11th example. 40 multiplied by 7. 7 multiplied by 0, 0. 7 4s are 28. So what is our answer? 280. Now see 12th example. 20 multiplied by 3. 3 multiplied by 0, 0. 3 2s are 6. So what is our answer? 60. Now see 13th question. 90 multiplied by 5. 5 multiplied by 0, 0. 5 9s are 45. So what is our answer? 450. Now see 14th question. 30 multiplied by 2. 2 multiplied by 0, 0. 2 3s are 6. So what is our answer? 60. Now see next multiplication is 20 multiplied by 6. 6 multiplied by 0, 0. 6 2s are 12. So what is our answer? 120. Now see next example. 90 multiplied by 8. 8 multiplied by 0, 0. 8 9s are 72. What is our answer? 720. Now 17th example. Very simple. 10 multiplied by 8. 10 8s are 80. We can write directly. Now see next example. 18th example. 70 multiplied by 5. 5 multiplied by 0, 0. 5 7s are 35. So what is our answer? 350. Okay. Now write down 350. Now see 19th example. 100 multiplied by 9. Very simple. We can do it orally. 100 multiplied by 9 equal to 900. So we can write 900 in this box. Now see 20th question. 100 multiplied by 7. Here also we can do direct multiplication. 100 multiplied by 7
equal to 700. So write down 700. Now see 21st question. 100 multiplied by 4. What is the answer? 400. So write down here 400. Now see 22nd question. 100 multiplied by 3. How much? 300. Okay, we can do it orally. So in this way, write down all the answers correctly in the boxes. Now see students, page number 66. Exercise 4P. What is in this exercise? Estimate the following sums to the nearest hundreds. So addition is given here. Simple addition we have to do. हमें यहाँ पर एडिशन, फर्स्ट एडिशन करनी है और वही दो नंबर्स जो है उसको हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 100. ओके, सो अभी क्या करना है, देखो 173. अभी ये जो नंबर है 173 जो नंबर है वो 150 के आगे आता है, तो वो नियरेस्ट किसके नियरेस्ट आएगा? 173. ये नंबर 100 के नियरेस्ट होगा या 200 के नियरेस्ट होगा? ये नंबर देखो 150 के आगे का है, 150 के आगे का नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 173 ये नंबर नियरेस्ट टू 200. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा? 173 का एस्टिमेट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वो है 200. ओके, अभी नीचे कौन सा नंबर दिया है? 58 नंबर. देखो 58 ये नंबर कहाँ है? 50 के आगे चला गया है. 50 के पीछे अगर होता ये नंबर, सपोज 50 के पीछे 47 नंबर है, अगर ये नंबर 47 होता तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखो 58 ये 50 के आगे चला गया है, अगर ये 50 के पीछे होता तो हम लोगों को ये 58 के अगर आगे गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा. ओके, सो 58 और अगर 50 के पीछे है तो हमें यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा. 10 to 100. ओके, सो अभी यहाँ पे हमको इसकी पहले एडिशन कर लेनी है, यहाँ पर भी इसकी एडिशन करनी है. सो एस्टिमेशन करने के बाद उसका भी हमको ऐड करना है. नाउ फर्स्ट वी विल ऐड दिस. 8 plus 3 11 carry 1. 7 plus 1 8. 8 plus 5 13 carry 1. 1 plus 1 2. और ये जो एग्जाम्पल्स है A, B एंड C, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को नोटबुक में कंप्लीट करने हैं. आप लोग लिखेंगे नोटबुक में एक्सरसाइज 4P. ए क्वेश्चन लिखेंगे, एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स टू द नियरेस्ट 100, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस आप लोग नोटबुक में लिखेंगे. एंड यू हैव टू राइट ईच नंबर इन ईच सेपरेट बॉक्स. नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट इन द नोटबुक. अभी यहाँ पे 2 एरो करने हैं और उसके बाद हमें इसका एस्टिमेशन लिखना है. आप ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर एस्टिमेट. ओके, अभी इन दोनों की हमको एडिशन करनी है. जो यहाँ पर साइन है वो यहाँ पर हमको लिखनी है. सो 0 plus 0 0. In the boxes I have prepared boxes for you. 0 plus 0 0. 2 plus 1 3. So this is our estimation. Estimate, ये हमने estimate निकाला है. ये हमको यहाँ पर इसकी एडिशन करनी पड़ेगी. यहाँ पर भी हमने इसको ऐड किया है. ओके, अभी ये फर्स्ट एग्जाम्पल होने के बाद आप लोग नीचे सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे नोटबुक में. 463 plus 128. ओके, अभी हमको यहाँ पे इसका एस्टिमेशन फाइंड आउट करना है. 463. अब ये 463 नंबर 400 और 500 के बीच में है, लेकिन ये 463 नंबर 450 के आगे चला गया है, तो ये किसके नियरेस्ट रहेगा? ये रहेगा 500 के नियरेस्ट रहेगा.
इसलिए हमें इसका एस्टिमेट लिखना पड़ेगा 500। ओके, अभी कौन सा नंबर नीचे दिया हुआ है? 128। अभी देखो 128 ये 150 के पहले का नंबर है ना? 150 के आगे का नंबर है क्या? नहीं, ये नंबर है 128। इसका मतलब ये 150 के पहले आता है, बहुत पहले आता है। तो ये किसके नजदीक रहेगा, किसके नियरेस्ट रहेगा? तो ये नंबर नियरेस्ट रहेगा 100, ना कि 200। जो भी नंबर 150 के आगे जाता है उसे हमको 200 लिखना पड़ता है, और जो भी नंबर 150 के पहले आएंगे उसका एस्टिमेशन हमको लिखना पड़ेगा 100। अभी यहाँ पे कितना कौन सा नंबर दिया हुआ है? 128। तो 128 ये नंबर 100 के नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट टू नियर 100। सो वी हैव टू राइट हियर 100। अभी यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अभी हम लोग दोनों का एडिशन करेंगे। 8 + 3 11, कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 4 + 1 5। So what is the answer? 591। अभी इसका भी हमको एडिशन करना है। वेरी सिंपल, राइट डाउन each number in each separate box. Same to same you have to copy in your notebook. 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 1 6. So what is our answer? 600. Okay, you can write here estimate. तो आपको समझ में आएगा ये हमारी एक्चुअल एडिशन है और ये हमारी एस्टिमेट वाली एडिशन है। ओके, नाउ सी, नाउ राइट डाउन थर्ड एग्जांपल. व्हाट इज थर्ड एग्जांपल? 287 + 189. तो हमने पहले इसको ऐसे लिख लिया है, बॉक्सेस में लिख लिया है। अभी हमको इसका एस्टिमेट ढूंढ निकालना है। आप ऊपर लिख सकते हो यहाँ पर एस्टिमेट। ओके, नाउ सी 287। अभी 287 ये 200 और 300 के बीच में है, और ये किसके ज्यादा नजदीक है? 200 के क्या 300 के? डेफिनेटली ये 287 है, इसका मतलब ये बहुत ही क्लोजर है 300, बहुत ही क्लोजर। कुछ ही देर के बाद वो 300 को टच करेगा, उसके पास जाएगा। तो हमें इसका एस्टिमेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पर 300। अभी देखो नीचे का नंबर कौन सा दिया हुआ है? 189। सेम थिंग, सी 189 दैट इज वेरी मच क्लोजर टू 200, नॉट की 100। ये 189 भी बहुत जल्दी 200 के पास जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा, मतलब बहुत ही नजदीक है। तो हमें इसका एस्टिमेशन लिखना पड़ेगा 200। अभी दोनों की हमको एडिशन करनी पड़ेगी। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 3 + 2 5. Okay, so what is the answer? 500. Now add this. 9 + 7 16, carry 1. 8 + 8 16, 16 + 1 17, carry 1. 2 + 1 3, 3 + 1 4. So what is our answer? 476. So you have to write down first, second, third example in your notebook as it is. Now see fourth example. So what is fourth example? 273 + 504. So we have to estimate these two numbers. 273, 273. That is very much closer to 300, not 200. So we have to write down 273. इसका एस्टिमेशन हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 300. So write down 300. Now what is the second number here? 504. क्या नंबर दिया है यहाँ पे? 504. अभी 504 that is very much nearer to 500. ये किसके ज्यादा नजदीक रहेगा? 500 या 600? ये बहुत ही क्लोजर रहेगा 500 के। सो इसके लिए हमें इसका एस्टिमेशन लिखना है 500. Which sign is there?
addition. Okay, so we have to do here addition. 4 plus 3 7, 7 plus 0 7, 5 plus 2 7. So what is the answer? 777. So we have to again add this. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 5 plus 3 8. So what is the answer? 800. Okay, everything you have to write as it is in your notebook. Now see fifth example. 673 plus 150. 673 इसका estimation 673, that is very much closer to 700, not 600, because it is crossed. इसने 650 को पार कर दिया है 673, तो ये बहुत ही नजदीक है 700 के, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसका estimation 700. ओके, नाउ 150. अब ये 150 एग्जैक्टली सेंटर में है, इसे हम 100 भी लिख सकते हैं या फिर 200 भी लिख सकते हैं. सो व्हाट वी विल राइट हियर, दोनों भी अगर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने एस्टिमेशन लिखना है. दैट इज नॉट द परफेक्ट एस्टिमेशन. वी कैन जस्ट डू द पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी वेरी क्लोजर, इट विल बी वेरी नियरर. सो 150 वी कैन राइट 100 or we can write 200 also. So we are writing here 100. No effect on that. कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने 100 भी लिखा या फिर 200 भी लिखा. ये नंबर 50 के आगे गया तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये नंबर 200, हम इसका एस्टिमेशन 200 लिख सकते हैं. लेकिन ये एग्जैक्टली 150 है तो हमें इसको 100, इसका एस्टिमेशन 100 ही लिखना पड़ेगा. ओके, 3 plus 0. ओके, अगर ये हमने 200 भी लिखा तो भी इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम 150 के हिसाब से 100 हम यहाँ पे लिखेंगे. अगर समझो 151 होता तो फिर हमको यहाँ पे 200 लिखना पड़ता. वैसे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. 3 plus 0 3, 7 plus 5 12, carry 1, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8. So what is our answer? 823. Now add this. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 7 plus 1 8. So what is our answer? 800. So write down in your notebook. Now see sixth example. 375 plus 236. So 375 after 50, that is closer to which number? 400, not 300. तो ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है 375, तो हमें इसका एस्टिमेशन लिखना है 400. और क्या दिया है नीचे का नंबर? 236. अभी 236 ये 200 के ज़्यादा क्लोजर है, तो हमें इसका एस्टिमेशन लिखना पड़ेगा 200 प्लस साइन हियर. नाउ डू द एडिशन. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 4 plus 2 6. अभी इसका एडिशन करेंगे. 6 plus 5 11, carry 1, 7 plus 1 8, 8 plus 3 11, carry 1, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6. Okay, so 1 to 6 examples we have to write in. Now see B question. Estimate the following to the nearest hundreds. So you have to write down this question also in your notebook. So first example, 613 minus 156. Now what is given here? Subtraction. You have to do your subtraction. No problem if we are having subtraction also. Same procedure you have to do here. अगर subtraction भी दिया है कोई भी डरने की बात नहीं है. हमें estimation तो जैसे हमने addition में किया है same to same हमको subtraction में भी करने का है. अभी पहले हम इसका estimate निकालेंगे. 630, 630 that is very much closer. ये बहुत ही क्लोजर है. किसके क्लोजर है? 600 के. तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 600. ओके, अभी कौन सा नंबर दिया है? 156. अभी देखो 150 के आगे नंबर चला गया है, तो फिर ये किसके नियरेस्ट रहेगा? 200 के. तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 200 सब्ट्रैक्शन. तो हमें कौन सी साइन देनी है? ये बराबर
बुक में से देखना है, उसके बाद ही लिखना है. नाउ डू द सब्ट्रैक्शन. 3 minus 6. 3 minus 6 not possible. So take 1 from this 1 and we can write here 13. 13 minus 6, 7. 1 means what? 11. Every time I also told you earlier also that 1 means what? 11. So 11 minus 1, how much? 10. So we have to write here 10. 10 minus 5, 5. 6 minus 1, 5. 5 minus 1, 4. So what is our answer? 457. अभी हमको एस्टिमेट का भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 6 minus 2, 4. ओके. तो ये सब कुछ ऐसे ही आपको नोटबुक में लिखना है. नाउ सी सेकंड एग्जांपल. 725 minus 345. तो पहले हम लोग इसका एस्टिमेट निकालेंगे. 725 ये 700 के नज़दीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 700. और 345 ये भी 300 के नज़दीक है, क्लोजर है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 300. सब्ट्रैक्शन के साइन. अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे. 5 minus 5, 0. 2 minus 4 not possible. So take 1 from this 7 and write down here 12. 12 minus 4, 8. 7 minus 1, 6. 6 minus 3, 3. So what is the answer? 380. अभी हमें एस्टिमेशन का भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 7 minus 3, 4. So write down as it is in your notebook. Now see third question. 875 minus 261. 875 ये नंबर 900 के क्लोजर है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 900. So write down here 900. और नीचे क्या दिया है? 261. 261 ये नंबर भी किसके नजदीक है? 300 के. सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 300. सब्ट्रैक्शन के साइन. तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 9 minus 3, 6. So what is our answer? 600. Now see 5 minus 1, 4. 7 minus 6, 1. 8 minus 2, 6. So what is our answer? 614. Now see fourth example. 352 minus 256. First we have to estimate. ये हमको पहले estimate करना है. 352. 350 के आगे का नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 माइनस साइन 256. यहाँ पर भी 250 को क्रॉस कर दिया है, तो ये किसके नजदीक रहेगा? 300 के नजदीक रहेगा. 2 minus 6 not possible, so take 1 from this part and write down here 12. 12 minus 6, 6. 5 minus 1, 4. 4 minus 5 not possible, so take 1 from this 3 and write down here 1. 14 minus 5, 9. 3 minus 1, 2. 2 minus 2, 0. So what is our answer? 96. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 4 minus 3, 100. Okay. Now see fifth example. 528 minus 216. पहले हमको इसका एस्टिमेट करना पड़ेगा. 528. That is very much closer to 500. So we have to write down here 500 minus sign 216. That is also very much closer to 200. बहुत ही closer है वो 200 के, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा 200. तो अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे. 8 minus 6, 2. 2 minus 1, 1. 5 minus 2, 3. So what is the answer? 312. Now इसका भी हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 5 minus 2, 3. What is our answer? 300. Now see sixth example. 879 minus 705. 9 minus 5. No, पहले हम इसको एस्टिमेट कर लेंगे. 879.
79 ये किसके नजदीक है ज्यादा? 900 के। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 900 सब्ट्रैक्शन की साइड। 705 देखो अभी 705 ये बहुत ही क्लोजर है 700 बहुत ही, सिर्फ 5 नंबर आगे चला गया है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, इसका एस्टिमेशन लिखना पड़ेगा 700 सब्ट्रैक्शन की साइन है यहाँ पर। 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 9 माइनस 7 2 आंसर आया 200। अभी इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे 9 माइनस 5 4 7 माइनस 0 7 8 माइनस 7 1 ये। So everything you have to write in your notebook. Now see example. Estimate each of the following products by rounding off each number to the nearest tens. अभी देखो हम लोगों को क्या दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में 37 मल्टीप्लाई बाय 22। तो वंस टेंस, व्हाट इज वंस 7, व्हाट इज टेंस 3। ओके, सो नियरेस्ट टेंस ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नियरेस्ट टेंस। अभी यहाँ पे हमको नियरेस्ट टेंस ये जो नंबर ये जो नंबर दिया है हमको उसको एस्टिमेशन करना है, एस्टिमेट करना है टू नियरेस्ट टेंस। अभी 37 ये नंबर बहुत ही नजदीक है 40 के, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 40। और 22 ये जो नंबर दिया हुआ है ये बहुत ही क्लोजर है 20 के। तो 10 से यहाँ पे हंड्रेड्स का कोई सवाल ही नहीं है, तो हमें 100 200 300 ये कोई हमको ये सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ टेंस तक ही सोचना है। मतलब यहाँ पे 37 है तो 30 और 40 के बीच में हमको ये सोचना है कि ये नंबर कहाँ पे किस नंबर के बहुत ज्यादा क्लोजर है, नजदीक है। 22 तो ये 22 नंबर किसके क्लोजर है, 20 के या 30 के? तो ये बहुत ही क्लोजर है 20 के। तो हमें इसका एस्टिमेशन लिखना पड़ेगा 20। और हमें यहाँ पर क्या करने का है, प्रोडक्ट्स फॉलोइंग, फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स। तो हमें जो एस्टिमेट नंबर हमने ढूंढ के निकाला है वो सिर्फ एस्टिमेट नंबर को हमको प्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर, सो राइट डाउन 40 मल्टीप्लाई बाय 20। Okay, so each number you have to write in your boxes. So 0 multiplied by 0 0, 0 multiplied by 4 0, 0 multiplied by any number, answer is 0. So now how we can do this? See, 0 multiplied by 0 0, 0 multiplied by 0. Now we have to multiply this 40 by 2. So we have to write down this 0, compulsory 0. That is our rule. So in that circle we write down plus sign. That is called as compulsory 0. अभी 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। 2 multiplied by 0 0, 2 multiplied by 4 8। ये हो गया। अभी हमको इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। ओके, हम लोग एडिशन करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, दिस 8 as it is. So what is our answer? Estimated product is 800. हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे आंसर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि हमने इसको एस्टिमेट किया है और उसके बाद उसका हमको आंसर मिला है। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 800, ये हमारा आंसर रहेगा। इसके नीचे हमको ये लाइन लिखनी है। समझ में आया? अभी हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। 23 मल्टीप्लाई बाय 18। फिर से हमको इसको एस्टिमेट करना है। 23 ये नंबर किसके ज्यादा क्लोज है, 20 के या 30 के? तो ये बहुत ही क्लोज है 20 के। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 20। और 18 नंबर बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है। किसके नजदीक आए, 18 19 20 के बहुत ही क्लोज है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20।
तो हमको कौन से दो नंबर मिले हैं अभी एस्टिमेशन के बाद? 20, 20। और यहाँ पे कौन सा साइन दिया हुआ है? मल्टीप्लिकेशन। तो हमें 20 और 20 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो राइट डाउन 20 मल्टीप्लाई बाय 20। सो हमको ये अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। सो राइट डाउन ईच नंबर इन ईच सेपरेट बॉक्स। ओके, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। अभी मैंने यहाँ क्या बताया? कंपल्सरी 0 का सर्कल निकालने का, उसके बीच में बराबर प्लस की साइन ली है, दैट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी 0। तो हमें ये सेकेंड नंबर से पूरे ये 20 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से 20 को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4। अभी हमको इसकी एडिशन करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। 0 + 0, 0, 0 + 0, 0, दिस 4 एज इट इज। तो हम सबसे इसके नीचे लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 400। हमारा आंसर आने के बाद हम लोग लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 400। ओके, इसके बाद हमारा आंसर फिनिश हो गया। ओके, अब ये थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है 41 मल्टीप्लाई बाय 60। अगेन हमको वैसे ही करना है। 41 दैट इज वेरी मच क्लोजर टू 40। 40 के बाद ही क्या आएगा? 41 आएगा। तो हमें इसका एस्टिमेशन क्या लिखना पड़ेगा? 40। और अभी वैसे ही 16 के बाद 17, 18, 19, 20। 20 के बहुत ही क्लोज है 60, तो हमें इसका एस्टिमेशन लिखना पड़ेगा 20। और यहाँ पे आपको क्या करने का है? मल्टीप्लिकेशन करने का है। तो हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? अभी 40 और 20 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो राइट डाउन 40 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 0। अभी इस 0 के नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमको? कंपल्सरी 0। अभी ये लिखने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8। और इसके बाद हमें इस दोनों की एडिशन करनी है, तो हम ऐसे एडिशन करेंगे। 0 + 0, 0, 0 + 0, 0 और 8 एज इट इज। और ये 800 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 800। So write down everything as it is in your notebook.